गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। Good evening, sir. All of you, please mute yourselves. We will start in a short while. अरे सर क्या है धीरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हेडफोन नहीं है। हाँ सुनिए क्या बोल रहे हैं। कुछ हो रहा है। गुड इवनिंग चौहान जी। शुरू हुआ। जोशी जी पूरे जोश में लग रहे हैं। हाँ पाल जी आ गए। अरे पाल जी सुनो भैया, अरे जी, कुछ पाल डिस्कस कर लो। हम लोग तो अभी होशंगाबाद में है ना। उनका सब चाबी दीजिए अच्छा ना। अच्छा हाँ हाँ थोड़ा चाबी गिरजेश दीजिए सर भी होंगे ना। गाड़ी दे दो हमें। राज सभी सर होंगे मित्रों को वहाँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जोशी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई ये चौहान जी। जी जी बताए सर सर। सर सर मैंने कहा ये पाल अभी सर कैंसिल नमस्कार। करवाओ। लेटर अरे तो आई है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मुझे मिलकर लगता है कुछ बड़ा डिसीजन होना है, इसलिए टाइम लगा। हाँ हाँ सर सर बड़ा बड़ा डिसीजन है। चौहान सर नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया सोनी जी नमस्कार। नमस्कार भैया सोनी नमस्कार जी कौन से ग्रुप में आ रहे हैं सर। अरे हम नहीं जा रहे हैं। वक्त आपके लिए कौन से सेशन में आएंगे। अरे अभी तो टेक्स्ट बुक बंटवा रहे हैं यार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। I request all of you to kindly mute yourselves, and this is to inform all of you that we all are on record. Whatever we are speaking is going on record. So please don't discuss among yourselves. So with this we start today's program. यस सर स्टार्ट करें सर।
dearest teacher students, we have waited for some 5-7 minutes, but people are yet to join, so we are starting. Respected Senior Regional Director, IGNOU Regional Center, Bhubaneswar, Dr. S.K. Tripathi sir, dearest student teachers from Navodaya Vidyalaya Sangathan, very good evening to all of you. It is a great pleasure to address you and welcome you to IGNOU family. Even though our classes have started, we thought that it will be wise to go for a session which will give you some inputs regarding how to proceed towards completion of this program successfully. Manoj Joshi ji, please come present. As you know, IGNOU is the largest university in the world, not only in terms of the territory it covers, but also in terms of the student strength. So now, please feel proud to be a proud member of the IGNOU Learning family, and as sister organizations in the Ministry of Education, Government of India, it's a proud privilege on our part to welcome you all to this family. Now, as you know, already through your classes, we have 4 papers in this CPTT program. This is basically an on-the-job training program, which will refresh your skills as teachers. So you are not only students, you are all student teachers. And in the true sense of the term, we all are student teachers and we all are teacher students. Because learning is a lifelong process. It starts in the mother's womb and ends at the funeral pyre. And even in the Indian tradition, it goes on after that. So lifelong learning is a must for every human being to sustain himself or herself in the not only in the professional sphere but also in life. So in the CPTT program, which is a joint venture of the Navodaya Vidyalaya Sangathan, Ministry of Education and Indira Gandhi National Open University, the program is so designed that there are different life skills and educational skills, teaching skills, and psychological skills that a teacher has to nurture and culture in order to deal with the students in a better manner. So the first course is BS 061. It is the understanding and managing adolescence issues. This is a stage through which all have gone through, but this course will enlighten us as to how to handle adolescent issues in a better manner. It will equip us with the psychological theories, psychological perspectives, and psychological examples through 10 psychologists as to how to deal with the adolescents, particularly at the school level. This is one. Then we have the BS 062. This is regarding a facet of life which is not only important for teachers, it is also important for administrators, it is important for students, it is important for persons who are preparing for competitive exams. So the self-development is also a lifelong process, because personality, even though it is a product of the environment as well as behavior, there are certain features of personality which are enduring. At the same time, there are certain personality features which are amenable to change. There is a scope for change in everybody's life and everybody's personality up to some percent, up to some extent. So here we know how to go for self-development of ourselves, both as teachers and as well as human beings. Then we have the course 063, BES 063. This is exactly what you people deal with
at your schools in your professional sphere. This is institutional life and culture. Jawahar Navodaya Vidyalaya. This is your own case studies. So if people should be able to throw more light on this than ourselves. So in the light of the courses you have studied, in the light of the courses you have studied, Neeraj Kumar, please mute yourself. नीरज कुमार जी म्यूट कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट रखिए ताकि हम सभी एक दूसरे को सुन सकें और अच्छे से कार्रवाई चल सके। जो है BS06 टेलिंग institutional life and culture, the case of Jawahar Navodaya Vidyalaya. This is the case of an institution which is preparing students to be better human beings, to be better citizens and better professionals. So that is the big contribution Jawahar Navodaya Vidyalaya is making to this nation for decades. So you all are proud members of that learning community. नीरज कुमार जी आप बार-बार म्यूट कर रहे हैं। नीरज कुमार जी प्लीज म्यूट रखिए। So this is the course in which you have your own professional experiences that will come in handy. Besides that, we have a workshop that is BS064, and that is where you will learn a great deal in the face-to-face mode when you come to your workshop center at Navodaya Leadership Institute, Konark in Odisha. So with this, let me tell certain general features of how to go for your program. As you are all teachers, I not have to explain much to you. In the IGNOU system, you have three components in your learning. One is the theoretical component. Theoretical components are, as we have told already, BS 61, 62, and 63. So this has two evaluation components. One is the theory examination that you will take in the month of June 2024. That is termed as June 2024 term and examination of IGNOU. For that, you need to go for the online filling of the forms, exam forms, and you have to take the examination at the center you have opted for in the concerned online examination form. Then there is the formative evaluation part. That is a continuous evaluation done through writing of assignments at home. You all have been provided assignments through attachments in this invitation that has gone for the induction. So please go through your study materials, attend the classes, and after that start writing your assignments. Then these assignments you can submit at the Navodaya Leadership Institute when you come for your training. Our Senior Regional Director, Dr. S.K. Tripathi sir, will throw more light on that while he talks and addresses you all. Then you have to, there is 70% weightage in the theory exam and 30% weightage in the assignment part. Besides that, there is, as I have already pronounced, there is the course called BS064. That is the practical course. That is the workshop. You have to attend mandatorily in the offline mode at Navodaya Leadership Institute, Konark, here Bhubaneswar. So that will give you the hands-on training regarding the different facets of your program. So that is where the practical component lies. So basically there are two components. The theoretical part is divided into two. Excuse me, sir. Term and theory exam and the assignments. Please don't interfere now. We'll give you some time after the address of the Senior Regional Director, sir, where you can go for your queries and we will address certainly your queries. So the third part is the practical component, which you have to attend at the Navodaya Leadership Institute as per the groups that have been constituted and informed to all of you.
So with this, I request our Senior Regional Director, sir, to kindly welcome all of you and address all of you. Sir, please. Dr. S.K. Tripathi, sir. I'm sorry, so my microphone was mute. So thank you very much, Dr. Nanda. Thank you very much for throwing some light on CPDT program in general. Of course, I'll be touching on the other important aspects of CPDT as well as the operational aspects of Indira Gandhi National Open University. And before coming to that, I would like to welcome all the participants, that means our learners of CPDT program, to IGNOU Regional Center, Bhubaneswar. There are 230 candidates who have been enrolled, in January 24 admission cycle, and we are sure that all these candidates are the teachers, practicing teachers in different Navodaya Vidyalaya schools, Navodaya Vidyalayas under Bhopal region. So it's a great opportunity for all of us to see each other through this web conferencing platform and to listen to each other so that the program can be successfully imparted, and whatever problems we have, those problems will be amicably settled. So once again, I welcome all of you to IGNOU Regional Center, Bhubaneswar. And I'm sure that the kind of support that you are going to get in another, 3-4 months will definitely help you in completing your program, not only in helping you completing your program successfully, but also will give you some precious academic input through which you can, render your services in your respective schools successfully. You all must be knowing that IGNOU has signed MOU with Navodaya Vidyalaya Samiti to train the teachers working in different Navodaya Vidyalayas. Because you see, on-the-job training is lacking in most of the sectors. You must have done your B.Ed program or B.Ed training as well as M.Ed training before joining Navodaya Vidyalaya Samiti. And you must have worked maybe 10 years or 15 years without any sort of training. Maybe, I don't know. But that is not going to help. Whatever training you had 10 years back in your B.Ed or M.Ed is not going to help you in tackling the trivial issues that you are that you are confronting in day-to-day life, isn't it? Therefore, on-the-job training or continuous training of professionals is required, and therefore Navodaya Vidyalaya Samiti wanted IGNOU to prepare a training package, so that with the help of that training package, the teachers can be trained and their knowledge can be updated. Updation of knowledge can take place. So this is precisely the reason why this program has been launched, and this is launched especially for Navodaya Vidyalaya teachers, not for anybody else. So I'm very happy that you all have joined, you have joined with lots of enthusiasm, and I'm sure the kind of training that you are going to get with the help and support of Navodaya Leadership Institute, NLI Puri, and IGNOU Regional Center, Bhubaneswar, will definitely help you in completing the program successfully. So let me give some information about Indira Gandhi National Open University before I switch over to your CPDT program. You all by now must have gathered a whole lot of information about the university, that is Indira Gandhi National Open University. This is a central university established by Government of India in 1985. And the main objective of this university is to provide cost-effective vocational, professional, and skill development programs at the doorsteps of the learners, at the doorsteps of the needy people of our country. And in this particular endeavor, since 1985,
IGNOU has been preparing or developing academic programs and offering those programs with the help and support of various regional centers and study centers across the country and abroad. And you'll be very happy to know that IGNOU has been successful in every respect. In terms of enrollment or generating enrollment, IGNOU is number one in the whole world because it is now the largest open university in the world, enrolling more than 3 million learners every year. Similarly, in terms of network, IGNOU is number one. It has network of regional centers and study centers, not only in every nook and corner of the country, but also in many overseas countries. In terms of academic programs, it is number one because you will never find such a long list of academic programs in any conventional university or in any state open university in the country. More than 350 academic programs are on offer. Such a long list of academic programs, and that too, those programs are being offered quite successfully, and lakhs of learners are getting benefit, or they are benefiting from these programs. Similarly, in terms of quality, the academic programs or the study materials which are provided to the learners are of high quality. Even the aspirants of civil services are following IGNOU materials, study materials. I know that there are quite a good number of civil service aspirants who are referring bachelor's degree, the study materials which are prevalent for bachelor's degree program, master's degree program, and so on and so forth. So the materials are qualitative. Network, there is a very big network of learner support centers to provide support services. The university is largest in terms of enrollment, and in terms of adopting the new technologies, this university is also number one because whatever new technologies are coming in the field of teaching and learning, all those new technologies are being suitably integrated in the delivery mechanisms of the university. For example, your Swayam Prabha, Gyan Darshan, Gyan Bani, then all internet supported teaching learning system, CD-ROMs, digitization of study materials, digitization of the libraries, whatnot. Then web conferencing, teleconferencing, then MOOCs, massive open online courses, isn't it? Introduction of MOOC programs. There are many MOOC programs which are on offer by Indira Gandhi National Open University. Then, like that, whatever latest technologies are available today or that we see today, all those things you will find in the delivery mechanism of Indira Gandhi National Open University. So IGNOU has really left a very, important footprint, not only in the educational system of our country, but also in the educational system of many underdeveloped countries. For example, in Africa, take for example in Africa, IGNOU is now providing academic programs to the African students of 19 countries, 19 African countries. Bhubaneswar Regional Center has been entrusted upon the responsibility of providing, educational facilities to the learners of tourism programs as well as BSW programs. So we are, providing support services to these learners of African countries from Bhubaneswar. Staying at Bhubaneswar, we are providing support services to them. We are in touch with them. They're also in touch with us. And, we are preparing, as I am talking to you the same way, I am also talking to those students and I am addressing the issues which are there with them. So like that, university is now have become a very vibrant university, and therefore very, truly it has been called the People's University. It has been created for the poor people of our country. Those who are not able to afford to go in for the costly or the expensive formal education, they can very well come to IGNOU's fold and upgrade themselves and acquire a very precious qualification. So IGNOU has really done a wonderful job as far as providing academic programs is concerned and providing
skill development program is concerned, its objective is not only to provide academic programs. Its objective is also to provide a knowledge base. Its objective is also to provide a set of skilled personals who can really contribute for national development. So that is also one of the biggest objective with which this university has been established. So friends, you are really fortunate that you are now becoming a part of this university. You have become a part of this university, and I'm sure, the kind of academic input that you are going to get through the CPDT program will definitely help you in making you a successful teacher. As you know, Bhubaneswar Regional Center is one of the oldest regional centers. Mr. Rajendra Prasad, can you please mute your microphone? Please mute your microphone. I request all of you to kindly mute your microphone. It is disturbing others. Mr. Rajendra Prasad, please mute your microphone. Microphone. Okay. As far as Bhubaneswar Regional Center is concerned, it is one of the oldest regional centers in the country, and this regional center is continuously providing best kind of support services to the students. Mr. Rajendra Prasad, if you are listening to me, please mute your microphone. Thank you. Thank you. So it has been providing excellent support service to the students, and as a result, this regional center has been awarded gold medal 3 times and best service award once. So 4 times it has got, what should I say? It has got gold medals and appreciation from the university in the whole country. So it has become possible because of the concerted efforts put in by all our stakeholders. I do not owe this particular achievement to only the staff of Regional Center Bhubaneswar, but also I owe this particular achievement to all our stakeholders, without whom this feat would not have been achieved, or this particular achievement would not have been received by us. So friends, Regional Center Bhubaneswar has at the moment 53 learner support centers, and it has nearly 30,000 learners enrolled, and it is the mother of two other regional centers which are operating within the boundary of the state. Bhubaneswar Regional Center is the mother regional center for two other regional centers which are operating within the boundary of the state of Odisha. Like Koraput Regional Center is one, and Angul Regional Center is the other. So there are 3 regional centers working within the territory of Odisha state, and these 3 regional centers are providing support services to the students of nearly 55,000 learners, isn't it? Support services to nearly 55,000 learners. So it's a great achievement, and every year good number of learners are getting what should I say, they are getting absorbed in very prestigious positions, because we are organizing alumni meet, and in the alumni meet we come to know that our learners are well placed, isn't it? We have a B.Ed program, and almost all learners who have qualified in our B.Ed program are absorbed as teachers in different schools. In many professional programs, we have we know that our learners are placed in different organizations as professionals, isn't it? Even we have many bankers who have done one program or the other, and they are established. Engineers, doctors, medical, other medical professionals, paramedical professionals, and so on and so forth. So you name any discipline areas, and you will not find a student of IGNOU, or you will not find a program which is not offered by Indira Gandhi National Open University. So IGNOU's programs have touched almost every discipline of knowledge, and therefore you will find various kinds of professionals in various fields who have done one program or the other from Indira Gandhi National Open University. So friends,
I will not speak much about this university because everything is there in the website and many of you must be knowing about it. Let us come to your CPDT program, Certificate in Professional Development of Teachers. You know that this program is running in many regional centers in many regions. So Bhubaneswar Regional Center has been entrusted upon the responsibility of the Navodaya Vidyalaya teachers of entire Bhopal region. So, and we have this NLI Puri has been attached to IGNOU Regional Center Bhubaneswar for practical training. The theoretical classes are taking place online these days because we know that you all are awfully packed in your profession and therefore it is not possible on your part to come to the study center to attend the physical class. Therefore, we are organizing online class for you, and the classes are going on. And it will continue up to first week of April. But in the meantime, we have received a communication from your headquarters, your Navodaya Vidyalaya Sangathan, that the workshop is going to start from 1st of April. So if that is there, then we have to shift the last paper, towards the end of the workshop, isn't it? Or once the workshop is completed, the last paper, that is BES 63, BES 63, or the online classes for BES 63 will be conducted. So like that, things are taking place because the dates are decided by Navodaya Vidyalaya Samiti, the workshop dates. We cannot change it because they decide keeping in view the availability of time of the teachers. Therefore, yesterday I have sent a mail to all of you to give your consent whether the dates which are provided by Navodaya Vidyalaya Sangathan is suitable to you. If there is any difficulty, then we may accommodate not all but a few teachers who are facing real difficulty. So if everybody says that the dates are not suitable, it is not possible. So only small number of learners of Hello, sir. Excuse me, sir. Please wait. Hello. Please wait. I will listen to all of you after the presentation is over. Hello. So please wait. I will listen to you once the presentation is over. Okay, so sir. Till such time, please wait. I will give you ample time for interaction. So please wait till that. So your CPDT program workshop, or the workshop for CPDT program, is going to start from 1st of April. I have given. And in the meantime, the Deputy Commissioner of Navodaya Leadership Institute, Madam Kusum Singh, has written to your organization, the head of Navodaya Vidyalaya Samiti, to think about the dates, keeping in view the coming parliamentary election, because many of you must have been, given the election duty, and many of you may not make it possible to attend. Therefore, she has written from her side to the authorities of Navodaya Vidyalaya Samiti to think about it, think about the dates, and if the dates will be changed, then the changed date will be again communicated to you. But now, whatever dates have been sent to us, those dates have been sent to or have been shared with all of you, and that is the tentative date, of course. Maybe another 2-3 days, the final date will be prepared, the date sheet will be prepared, and it will be communicated to all of you so that you can book your ticket well ahead of time and attend the workshop at NLI Puri comfortably. Okay, it is an in-house program. The hostel accommodation is there, so you can stay there inside the campus of NLI Puri and attend the 5 days long workshop. The workshop will be of 5 days duration. So there will be 5 batches. There are 230 students. Therefore, we have made 5 batches because their accommodation is only 45. So in every batch, we have kept 48 learners. And this is prepared keeping in view the availability of seats and their problems. So batch by batch, we will be calling you and you have to attend the workshop, because workshop is compulsory. That is an essential component of your CPDT program, isn't it?
Workshop is conducted only once. If you skip one theoretical paper, you can appear next time. But this workshop, if you skip the workshop, it will be difficult to attend the workshop next time, because next time you never know how many learners have been enrolled. If there will be a good number of learners, it will not be possible to accommodate you in the next page. So please remember the dates in which your name is enlisted. Please attend the workshop during those dates only, isn't it? So, that particular spell only. And that will be communicated to you. I have, let me tell you about what are going to take place in the workshop. You all know, because Dr. Nanda has told you about the theoretical subjects, isn't it? BS 61, 62, and 63. And Mr. Rajesh Chaurasia, please mute. Mr. Rajesh, please mute your microphone. Mr. Rajesh, please mute your microphone. Thank you. So, Dr. Nanda, our Deputy Director, has already told you about the theoretical part, that is BS 61, 62, and 63, isn't it? 3 theoretical papers and 1 project, your workshop. There are total 4 papers, as as Dr. Nanda has already told you. So 61, 62, and 63 are theoretical papers, and BS 64 is your your workshop. And this workshop is of 5 days duration. And in these workshops, you will be trained on what? You will be trained on adolescence and mental health. Then you will be trained on building moral behavior and values, isn't it? That means value system, how or what kind of values, rightful values you should have, so that you can deal with your young students, successfully. Then developing communication skills, isn't it? What are the different facets of communication? All those things will be, discussed, and you'll be trained in those lines. Then counseling skills and techniques will also be taught, will also be practiced, not taught, will be practiced over there. Then life skills development, because every teacher must understand the 21st century skills, isn't it? Your critical analysis, synthesis, problem solving activity, creativity, all those things are 21st century skills. So all those skills will be practiced over there. Some task will be given to you. First of all, presentation will be there by the experts, by the psychologists, and subsequently you'll be assigned with some task, and you'll be required to do the task at home. That means, when you go back in the night, you have to prepare the assignment and submit the assignment for assessment. So like that, things will take place. Then you'll be trained on conflict resolution, conflict management, conflict resolution, stress management, isn't it? Then interpersonal relationship, interpersonal processes. Okay. Then live position, script analysis. So all those things. Mr. Pandey, you are consistently opening your microphone. Please mute. So, these things will also be discussed there in the workshop, and a lot of other activities, associated activities will also take place, isn't it? These are the, broad, things that are going to take place in the workshop, I am telling you. And then multicultural classroom, culturally responsive instructional strategies, personalized learning, isn't it? Then course design, universal design of learning. Then universal design of learning will be discussed. Then inclusive teaching learning practices. Okay, inclusive teaching learning practices. So all these things have been, scientifically designed, for all of you. And I am sure you'll be immensely benefiting from the workshop that is going to take place in Navodaya Vidyalaya Samiti. And friends, you see, this particular subject, CPDT, is something which is practical in nature. No doubt the theoretical papers are there, 3 theoretical papers, but if you read those papers, you'll find a lot of practical aspects, because it is based on the practical aspects of the teachers, isn't it? How the teachers are teaching, what kind of problems they are facing, isn't it?
what are the skills which are required on the part of a teacher in order to deal with the learners effectively, and so on and so forth. So all these things have been suitably integrated in this CPDT program, and these will be immensely beneficial for all of you. Okay, it is a kind of training package. It is a kind of training package. If you learn it successfully, maybe in the coming days you will be also you will act as a trainer. You can train others. It will have it is like a TOT program, isn't it? Training of trainers. So if you train yourself, you'll be able to train others, because these are the things which are very essential, very precious on the part of teachers. Then coming to the other aspects, you see, counseling classes are now going on, and maybe we'll be completing all these classes before the commencement of the workshop, if it is possible. If it is not possible, then maybe one paper will be shifted to the last part of the workshop. Then you have to write the assignments. Questions I think have been supplied to you. If not supplied, then you have to download the assignment questions from IGNOU's website. If you go to IGNOU's website, that is www.ignou.ac.in, in that website, if you go to download link, you can go to your CPDT program and then download the assignments. You have to submit 3 assignments for 3 theoretical papers. BS 61, for BS 61, 1 assignment you have to prepare. For BS 62, another, and BS 63, the third one. So 3 assignments you have to write and submit the assignments during the workshop. Normally, if you write the assignments and come to the workshop with the written assignments, it will be time saving for you. You can straightway submit the assignments at the workshop, and our experts will carry those assignments and evaluate them and submit the award list, the grade card, sorry, not grade card, the award list to us, which will be subsequently sent to Delhi for reflection in your grade card. Okay, so it is time consuming. So I would request all of you to start writing the assignments, 3 assignments, and come with those assignments, isn't it? The assignment answers. Come with those assignment answers and submit those assignments at or during the workshop. Okay, and since you are January batch learners, you are supposed to appear the June term and examination for theory papers. June term and examination will start from 1st of June and it will continue for 1 month. And between during this particular duration, your CPDT program 61, 62, 63 papers will be there, and as per the schedule, please take the examination and complete the theory papers, isn't it? Workshop grades will be sent by regional center, but the theory papers will be evaluated by the evaluators on all India basis, and the marks will be reflected, and finally it will be uploaded in the website, which you can also see, and you will get the printed grade card and provisional certificate by post. Okay, so these are the things we wanted to share with you. And for examination, you have to fill up the examination form. Many of you maybe due to ignorance do not fill up the forms, because last time also we have come across many students who could not fill up their form, isn't it? Who could not fill up their forms, and they were deprived of taking the examination. They could not take the examination. Okay, so please do not do that. Because it is not compulsory that you have to appear all the 3 theoretical papers in the June term and examination. If you feel that you are busy and if you have very little time, then you can fill up the form for 1 paper or 2 paper as per the suitability of time, as per the availability of time. Okay, so you can fill up the form accordingly, as per your choice, and take the examination and clear those papers. And sooner the better, since you are all working professionals.
you have to complete the program within the minimum time given, that is 6 months. If that is done, I think it will be better for you. And you all are sponsored candidates, isn't it? Sponsored by Navodaya Vidyalaya Samiti. So they might also give you strictures if you do not complete the program in time. And we are also providing the reports, because our headquarters is also providing reports to Navodaya Vidyalaya Samiti as to how many students have completed the program and how many have not completed the program. So that is better for you if you complete the program within 6 months. And in case of any difficulty, you can send mails to us. Our regional center mail you must have known, that is rcbhubaneswar@igno.ac.in. And you can also talk to us in the landline number, in the inquiry counter number, which is available in IGNO's website. Okay. rcbhubaneswar.igno.ac.in is the regional center website. And IGNO's main website is IGNO at www.igno.ac.in is the main website address. Okay, igno.ac.in is the main website address. Okay, rcbhubaneswar@igno.ac.in, sorry, not at, rcbhubaneswar.igno.ac.in is the regional center website. So please remember these two websites and keep visiting these two websites for latest information. And in case of any difficulty, you can talk to us, and we will be at your disposal, for providing any kind of support that you require. I think we should stop here and take questions. Dr. Nanda, if you are here, we should take questions. Thank you so much, sir, for your fantastic presentation. And I believe that our student teachers have benefited in a great way from your talk. Now we have several queries that are that I can see in the chat box, and one of them is, sir, I want to choose 1507 Sagar MP for the exam, but its center is not showing in the exam center list. What should we do? Let me tell you that if the exam center you want to offer is not showing in your in the list of examination center that is available in the online portal, please contact your concerned regional center. For instance, if your regional center, your exam center comes under the purview of regional center Jabalpur, you need to contact regional center Jabalpur. If it comes under the control of regional center Bhopal, please contact regional center Bhopal. And your email ID of that concerned regional center is like this: rcx@igno.ac.in, where X is the name of the regional center. For instance, if your regional center is Bhopal, the email ID of RC Bhopal is rcbhopal@igno.ac.in. So please write to your concerned regional center if you are facing problem of that kind. Sir, I have some few queries. May I ask you? Please tell your name and your regional center's name. Your name and your regional center's name. Sir, I don't have right now any regional center. I want to ask you, till date I have not received any books. And who is our resource person? We did not know, sir. Who is our resource person, whom to contact if any difficulty comes. And sir, in the month of June, we are going to face this Lok Sabha election. We have got the duty also there. So how we shall be able to participate in the examination? Please wait for some time, because the Deputy Commissioner of NLI Puri has written to the Navodaya Vidyalaya Samiti authorities to change the dates of the workshop, because these dates are decided by Navodaya Vidyalaya Samiti, not by IGNO, isn't it? Whatever dates were given, accordingly we have prepared the groups. Yeah. They had given dates like this: 1st April to 5th April, 22nd April to 26th April, 29th April to 3rd May, 6th May to 10th May, and 13th May to 17th May. So 5 dates they had given for Bhubaneswar, because for the entire country they had decided, but for Bhubaneswar they had given 5 dates.
So in these 5 dates, we have given 5 groups, isn't it? We made 5 groups, and accordingly we have shared that information with you. Yes, sir. And if it will not be possible, then maybe another 2-3 days we will work out as to how to go about it. All right, and accordingly the fresh information will be sent to you. So till such time you wait. As far as your study material is concerned, we have sent you the soft copy of the materials, isn't it, in your email ID. If it is not, then you can download the study material also from IGNOU's website. Sir, in my email ID, no information and no any assignment has come till now. I don't know, sir, whether they have So you sent. can Sir, see. मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। Let me clarify. Yes, It sir. has not gone to your email ID. It has gone to your Google invitation. So check the Google invitation. There are 4 or 5 attachments. One of them is the assignments. Sir, we have received the assignment you are talking about, but it is requiring the access when we click on it. Is it, It is already. is it asking for access? Yes, Sir, access is not provided to us. it is asking for access, and I have tried yesterday also, and I am trying today also. It is not Okay, open. okay. No problem. Now that no you problem. have brought it to our notice, so we'll send Yeah. this to the concerned email IDs. Alternatively, you can get it downloaded from the IGNOU Make site. sure, sir, make sure you make it open access document, sir, for Yeah, everybody. I It am is made a to open complete. access document. It is a open access document. It is available in IGNOU's website. What we did is we downloaded those materials and sent to all the email IDs that were available with us. So Sir, it is. listen. If some students have not received the study material or assignments, then we will send it once again. If it is again, if there is any difficulty, then you can simply go to IGNOU's website, go to download, go to eGyanKosh, and in eGyanKosh you can select your program and download the study material of CPDT program. That is also possible, isn't it? Sir, I am just saying. Sir, I have spent many times, but on the website we are not received, not able to download it. Hello, because sir. it is not showing the CPDT program. All right, don't worry. We are sending it to all of you once again. Today you will get Hello, the, sir. the materials in I- your Sir, I am just saying. Please send some material because no material has been received so far. Please, you see, raise your hands. We will ask one by one. Otherwise, if everybody will start talking, there will be, overlapping of voice. Sir, I have a request to you, sir. Can we prepare as a WhatsApp group? I told you that we are sending the study materials and assignment once again in your email ID, and you will get it today itself. Okay, sir. All right. Okay. So, just my request is to make it open access document. Don't make it asking for the access again and again. If you are sending it again, that is good. Like, make it open access document. That is what I am saying. It is a I open will take access just 1 document. minute. I will We take do just not know 1 how it minute. happened. I will take just 1 minute from all of you and explain you how to download it from the IGNOU site. You go. This is the IGNOU website. That you all can see. There is a blue strip where there is written home, about IGNOU, register online, student support, regional network. So you go to student support. Go to student support and there you click there is download. You go to download. Then when you go to download, my one request, assignment paper, when आप देखिए आप अगर सवाल आप पूछे हैं तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो सवाल मत पूछिए। आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि IGNOU वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है, और ये चीजें आपको अगले दिन में बात हेल्प करेगा। तो आप स्टूडेंट सपोर्ट में जाइए। स्टूडेंट सपोर्ट में कृपया बीच में बात मत करिए ना, बीच में आप टोकेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल नहीं पाऊंगा।
जो यहाँ लिखा हुआ है अब देखिए, आपको दिख रहा है वेबसाइट में, आपको दिख रहा है ये कोई प्रोस्पेक्टस, कॉमन प्रोस्पेक्टस, मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस, इसके बाद लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में मार्जिन में असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट्स में जाकर जैसे क्लिक करते हैं आपको दिखाएगा एक लिस्ट आएगा। देखिए कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम रखा हुआ है, इसमें आपको मास्टर डिग्री सबसे ऊपर है, बैचलर्स डिग्री है, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। आप जैसे पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप क्लिक करते हैं इसमें आपको ये मिलेगा सीपीपी डीपीटी, आपको सर्टिफिकेट में मिलेगा ये। हाँ, ये आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम में मिलेगा सीपीडीटी। ये देखिए ये सीपीडीटी लिखा हुआ है। सीपीडीटी के लिए जनवरी 2024 जुलाई 2024 सत्र के लिए आपका असाइनमेंट्स रखे हुए हैं वेबसाइट में। आप सभी इसको अपना घर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आप सभी लोगों को, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए जनवरी 2024, ये आपका BES 061 का असाइनमेंट पहला पन्ना में रखा हुआ है। सेकेंड पेज में आपका BES 062 रखा हुआ है और तीसरा पेज में आपका BES 063 का असाइनमेंट रखा हुआ है। ऐसे ये असाइनमेंट आप अपने घर में जाके भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा शाम को ईमेल पे भेज दिया जाएगा, पर मेरा ईमेल तो शायद अपडेटेड नहीं है प्रॉपर, उसमें कोई मेल ही नहीं आ रहा मुझे सर। तो काइंडली अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप ऐसे ही डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराना है तो एक ईमेल आईडी में दे रहा हूँ, उसमें आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल भेज दीजिए चेंज करने के लिए। आप उसमें ईमेल एड्रेस चेंज करने के लिए या ऐड करने के लिए आप जो है अपना एड्रेस पंजीकृत कर दीजिए। ये मैं डाक बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ वो एड्रेस को, csrc21@ignou.ac.in। सर ये जो कोर्स है वो हेलो सर, ये मैंने चैट बॉक्स में, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। उसमें ये बताया गया था सर कि आपको रिटर्न मेल के द्वारा अपना जो डेट है वो बताना है, लेकिन मेरे पास कोई मेल ही नहीं आया। तो हाउ कैन आई रिप्लाई सर? एक्चुअली आप सभी लोग माइक्रोफोन को ऑन करके रखे हैं, इसलिए हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब एक पर्सन बात कर रहा है तो दूसरे काइंडली कृपया अपना जो है माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो हम कोई किसी को समझ नहीं पाएंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, ये बोल रहा था कि ये जो कोर्सेज आप दिए थे जिनकी डेट्स के बारे में रिटर्न मेल के द्वारा बताना था, लेकिन मेरे पास कोई मेल ही नहीं आया। मुझे एक मित्र के द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किया गया, तो मैं कैसे फिर रिप्लाई कर सकता हूँ ये समझ नहीं आया। आप पहले एक ईमेल भेजिए रीजनल सेंटर में, वही बोला मैं, ईमेल चैट बॉक्स में लिख दिया हूँ csrc21@ignou.ac.in। आप उसमें भेजिए, एक ईमेल भेजिए कि हम जो है अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, हमको ये ईमेल एड्रेस ऐड कर दीजिए। एक बार मेल आईडी और बता दीजिए सर, थोड़ा सा स्लो। मेल आईडी को मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया और पिन भी कर दिया है, ये आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सर असाइनमेंट विल बी डिपॉजिटेड एट सर 2 क्वेश्चन है सर। अरे सर असाइनमेंट विल बी डिपॉजिटेड एट वर्कशॉप। हाँ, असाइनमेंट आपको वर्कशॉप में ही जमा करना है। You need to submit the assignment during the course of workshop। सर कोर्स फी क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा चीज एक मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो पिछले एक्सपीरियंस है उसी के तहत हम कह रहे हैं कि बहुत सारे असाइनमेंट्स, क्योंकि हम सभी लोग बड़े हो गए हैं तो हमको लगता है कि हम जो कुछ भी लिख देते हैं सही है, लेकिन हम स्टूडेंट टीचर होने के साथ साथ स्टूडेंट भी हैं। तो हमको याद रखना है कि हम जब कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उसको एक प्रोटोकॉल के तहत उसको लिखना है। कोई क्या करते हैं, तीनों आंसर को, तीनों जो क्वेश्चन पेपर है तीनों का एक ही आंसर में लिख के स्टिपल करके भेज देते हैं और बहुत लूज पेजेस में देते हैं। कोई एक पेज लिख देता है, कोई आधा पेज लिख देता है। तो इसमें बहुत एम्बैरेसिंग होता है हमको जब इवैल्यूएटर के पास भेजते हैं। हमको ये कहते हुए बहुत एम्बैरेसिंग होता है कि वी आर डीलिंग विद टीचर पर्सन, सो काइंडली वी आर ऑल टीचर्स। तो सबको याद रखना पड़ेगा कि हम जो असाइनमेंट जमा करते हैं वो कम से कम
सामने वाला जो एग्जामिन कर रहा है उसको लगे कि मतलब आप जो है प्रोटोकॉल कैसे लिखे हैं वो सही से लिखे हैं। आधा पेज का 1 पेज का ऐसे रुपया जमा ना करें। जैसे आपको क्वेश्चंस में निर्देशित किया गया है 1000 वर्ड में लिखना है, 1500 वर्ड में लिखना है या 500 वर्ड में लिखना है, उसी के तहत ही लिखिए और सही से लिखिए। और आप जो असाइनमेंट दे रहे हैं 3 कोर्स का है तो आप तीनों को अलग अलग देंगे। अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम कोड, अपना कोर्स कोड, सारे चीजें आप अनिवार्य रूप से सही तरीके से लिखिए ताकि जो भी आदमी सेटिंग कर रहा है उसको दिक्कत ना आए। नहीं तो बहुत दिक्कत आती है इसको सेटिंग करने में, क्योंकि कोई अपना नाम लिख देता है छोड़ देता है, कोई एनरोलमेंट नंबर गलत लिख देता है। ये सभी चीज को आप कृपया ध्यान दें और सही तरीके से उसको जमा करें। आप चाहें तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि आप जो बाउंड कॉपी है, कॉपियां खरीद के उसमें ही आप लिखिए। सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। महेंद्र सिंह पटेल कृपया म्यूट करिए। मैं आपका बात सुनूंगा, मैं आपका बात सुनूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं अगर आप ये समझेंगे सुनेंगे तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और आपके हित में है। ये जो है आप कृपया 3 कॉपियां खरीद लें और तीनों कॉपियों में अलग अलग जो असाइनमेंट्स जमा करें। तो क्या होगा कि जो लूज सीट्स का जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं सेटिंग के टाइम में कि ये असाइनमेंट किसका है, वो असाइनमेंट का सेटिंग के टाइम में दिक्कत नहीं होगा। अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट यू। आपका रिजल्ट सही टाइम से सही तरीके से निकलेगा, नहीं तो आप ही सफर करेंगे। थैंक यू। अगले क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ सर। A4 साइज पेपर में लिखेंगे ना, इसके लिए एक एक कॉपी बना देंगे आप कॉपी जमा कर दीजिए, वही सही रहेगा। कॉपी बनाने से अच्छा रहेगा, कॉपी रहने से सही रहेगा, क्योंकि लूज सीट में आप इधर उधर हो जाता है। आप कॉपी ही दीजिए, 3 अलग अलग कॉपी में लिखिए। तीनों अलग अलग इवैल्यूएटर के पास जाएंगे, इसलिए आप तीनों को अलग अलग कॉपी में लिखेंगे और अपने सारे डिटेल्स सही तरीके से लिखेंगे, सारे डिटेल्स लिखेंगे। सर मैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग एक ही साथ कह रहे हैं। सर मैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फी कुछ की 600 शो हो रही है, किसी की 900 शो हो रही है, तो एक्चुअल फी क्या है? आप जो है एक ईमेल भेज दीजिए हमको इसके लिए, जिसको जो दिक्कत आ रहा है उसको हम देख लेंगे। rcbhubaneswar@ticno.ac.in में भेज दीजिए। दूसरा चीज है, आप जिस वेबसाइट में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका पहला जो पेज है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। उसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कितने क्रेडिट के कोर्स के लिए कितने फीस है। 200 ईच है सर, 3 सब्जेक्ट्स के लिए, BS 61, 62, 63 जी। तो 600 हो रहा है और सिस्टम भी 600 ही शो कर रहा है। बट अगर ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी आपको दिख रहा है तो आप हमको एक ईमेल दीजिए, हम इसको दिल्ली फॉरवर्ड करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे। नहीं, सुनिए, इसका आप जो बोल रहे हैं सर, किसी का प्रैक्टिकल में भी शो हुआ है 300 फी, बाकी 200 पर सब्जेक्ट शो हुआ है, तो किसी का 900 हो रहा है, किसी का 600 हो रहा है। मेरा बात सुन लीजिए, जो आप बोल रहे हैं ना, किसी का 400 शो हो रहा है, किसी का 600 शो हो रहा है, बोल रहे हैं ना। Yes, it sir. all depends on the number of papers. If you select 1 paper, it will show 200. If you select I have selected 3 papers. If you select 2 papers, it will show 400. If you select 3 papers, automatically 600 शो करेगा। तो आप सिलेक्ट पेपर किया उसको देखना पड़ेगा पहले। Other than this 3 papers, any subject? सर इसके रिलेटेड में सर प्लीज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर उसका आंसर मुझे देंगे तो मुझे थोड़ा इसमें हो सकता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से आंसर कर सकता हूँ। क्या ये जो 600 और 900 का जो मुद्दा है, ये CPDT के स्टूडेंट्स के लिए है या अलग अलग प्रोग्राम के लिए है? CPDT के लिए ही भर रहे हैं सर हम लोग। CPDT के अगर आप चारों प्रोग्राम भर रहे हैं तो आपको कितना दिखा रहा है? 3 ही शो हो रहा है सर, 3 पेपर शो हो रहा है। तो किसी को आपका कहने का मतलब है कि किसी को 600 दिखा रहा है, किसी को 900 दिखा रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं? 300 प्रैक्टिकल शो भी कहीं कर रहा है सब्जेक्ट का, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 300, बाकी 3 सब्जेक्ट के 200। 1 सेकंड, ये वर्कशॉप के लिए कोई फी देना नहीं पड़ेगा। हेलो सर,
वर्कशॉप शो नहीं हेलो करेगा। हेलो सर 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 प्लीज लिसन टू मी प्लीज। सर मैंने लेट मी सर फिनिश। मैंने हेलो सर लेट मी फिनिश। मैंने ओके सर Let me finish. When you are filling up the examination form, only 3 papers will show: 61, 62, and 63. राइट सर। Because for these 3 सर papers, you have हमारे to फॉर्म में आप थोड़ा 4 चुप शो रहिए हो please। रहे हैं। आप थोड़ा चुप रहिए ना प्लीज। मेरा बात मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मुझे तो कंप्लीट तो करने दीजिए। ये आप जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे ऑनलाइन में, आपका 3 ही पेपर शो करेगा, 61, 62, 63। तो ये तीनों के लिए आप एग्जाम भरेंगे फॉर्म। आप चाहे अगर आपका पास टाइम नहीं है, आप एक पेपर भी दे सकते हैं। आपका पास पूरा टाइम है तो 3 पेपर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारे आपका ऊपर है, ठीक है। वर्कशॉप के लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट। Workshop will be conducted at NLI Puri and you have to stay there for 5 days and that is a in-house program. वहाँ आपका ट्रेनिंग होगा, 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और उसमें जो अवार्ड, जो आपका जो असेसमेंट होगा, जो बहुत सारे उसमें जो एक्टिविटीज होते हैं, फॉर एवरी एक्टिविटी देयर विल बी असेसमेंट। और आपका जो असेसमेंट शीट बनेगा, वो असेसमेंट शीट हमारा पास भेजेंगे वो एक्सपर्ट्स, तो उसी को हम दिल्ली को भेज देंगे। तो वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका ग्रेड कार्ड में। समझ गए? तो इसलिए कोई चिंता का या कोई कंफ्यूजन का कोई बात नहीं। अदर देन 3 सब्जेक्ट एनी प्रैक्टिकल पी आल्सो है सर? क्या क्या प्लीज? Other than 3 subjects, BS 61, 62, 63, any practical fee is also there? नहीं, और कुछ नहीं है। Okay, thank you सर सर प्लीज सर 2 मिनट सर मैंने 8 तारीख को फॉर्म भरा है, उसमें 4 सब्जेक्ट शो कर रहा था। मैंने चारों सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो उसमें 900 फी लिया उनने। ये 15 तारीख तक शो कर रहा था, अभी 15 तारीख के बाद सिर्फ 3 पेपर शो कर रहा है उसमें। नहीं 4 पेपर तो उसमें नहीं वो गलत है। कुछ गलत, आपने कुछ गड़बड़ किया होगा फॉर्म फिलअप का करने का टाइम में। नहीं सर, उसमें 4 ही सर, मैंने 8 तारीख को फॉर्म फिलअप करा था। मैंने 4 सब्जेक्ट उसमें शो किए उसने, 61, 62, 63 एंड 64। अभी लेकिन 61, 62 और 63 ही शो कर रहा है। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उससे कोई बाद में समस्या तो नहीं होगी ना? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। ओनली थिंग दैट यू हैव लॉस्ट 200 रुपीज, क्योंकि 4 के लिए तो देना नहीं पड़ेगा। 4 तो वर्कशॉप है ना। ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना पड़ता है, एग्जामिनेशन फीस। दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या सर, एक्चुअली ये टेक्निकल एरर होगी। जो पहले भर चुके हैं उनने 4 भरा है, जो अभी भर रहे हैं उनका मतलब 3 पेपर भर रहा है। तो ऑलरेडी जो जिनने 4 भरा उनकी 900 फी लगी है सर, और जो अभी भर रहे हैं उनकी 600 फी लग रही है। बस इतना ही समस्या हो रही है। कैसे हो गया? सर जी सुन लीजिए, मेरे बात थोड़ा सुन लीजिए। मैं एक प्रेजेंटेशन दिया हूँ, एक आपको दिखा रहा है। ये जो पेज है, इसमें आपको इग्नो का जो कंसर्न इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए। प्रैक्टिकल फीस जो है 300 रुपया पर पेपर देना है 4 क्रेडिट के कोर्स के लिए। और जो कि जनवरी 23 के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं उनके लिए है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि पहले 4 पेपर के लिए था, अब 3 पेपर के लिए दिखा रहा है, ये एक अगर डिस्क्रिपेंसी ऐसा है तो हम इसको एग्जामिनेशन डिवीजन का नोटिस में लाएंगे, फिर तभी हम कह पाएंगे। क्योंकि जनवरी 23 के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं उनको 4 क्रेडिट के कोर्स के लिए 300 रुपये पर कोर्स देना है, और 4 क्रेडिट से अगर ऊपर कोर्स है तो उसके लिए 500 रुपया पर कोर्स का फीस भरना है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि पहले आपको 4 कोर्स दिखाए थे और आपसे 900 रुपया गए हैं, जैसे मतलब 200 × 3 थ्योरी कोर्सेस, और चौथा के लिए आपसे 300 रुपये, इसके तहत 900 रुपया कटा है आपके अकाउंट से। दूसरा आपको बता रहे हैं, अभी जो है आपके जो कलीग्स हैं वो 200 के हिसाब से 3 कोर्स दिखा रहे हैं, तो इनको 600 रुपया हो रहा है। अगर इस प्रकार का डिस्क्रिपेंसी आया है तो हम उसको एग्जामिनेशन डिवीजन के नोटिस में लाएंगे,
फिर अगर उसमें कोई करेक्शन होगा तो देखा जाएगा। यस सर, क्योंकि एक्चुअली ये हमें रिमर्स होना है, तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग जब हम शो करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफिस में हो रही है कि उधर एक जगह 600 लग रहा है, एक जगह 900 लग रहा है, ऐसे कैसे है? चलिए, ऐसा ऐसा हमारे ध्यान में आया है तो हम उसको जरूर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को बताएंगे, क्योंकि जब तक हम खुद एंट्री नहीं किए हैं या एक्सपीरियंस नहीं किए हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। बट वी विल ब्रिंग सर्टेनली टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन। सर नहीं आप लास्ट क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन सर एक्चुअली कल आपने मेल भेजा हुआ था सर, कल आपने मेल भेजा था जिसमें आपने टेंटेटिव डेट्स दी थी ग्रुप्स बना के, लेकिन अभी हमारे हेडक्वार्टर से कल ही एक लेटर आया हुआ है कि ये अप्रैल की जगह आप दूसरे टाइम में शिफ्ट करना है। तो आपने बोला था कि आपको फिक्स करके बताना है कि आप कौन से ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो अभी हमें उसकी रिप्लाई आपको भेजना है या नहीं भेजना है? नहीं, आप अपने तरफ से अभी जो शेड्यूल है ना, उसी शेड्यूल में अगर आपका कोई एडजस्टमेंट है तो आप थोड़ा सा मेल में भेज दीजिए। अभी 2 दिन वेट कीजिए, 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि एनएलआई पूरी से लेटर गया है आपका हेड ऑफिस को। वहीं से अगर वो लोग सो मोटो चेंज करते हैं जो ग्रुप्स का डेट, तो उसी के हिसाब से फिर दोबारा हमको ग्रुप्स बनाना पड़ेगा। अगर वो वहां से चेंज नहीं होता है तो इसी के हिसाब से हम जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे। सपोज ग्रुप 2 में किसी का डिफिकल्टी हुआ तो उसको ग्रुप 1 में उसको ले लेंगे, या फिर ग्रुप 1 से कुछ डिफिकल्टी हुआ तो ग्रुप एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली सर प्लीज सर, एक्चुअली ये हमारा टाइम है सर। हेलो सर, एक मिनट सर एक्चुअली जो हमारा हेडक्वार्टर से लेटर आया है उसमें क्लियर कट मेंशन उन्होंने किया है कि 1 से 4 अप्रैल का जो कोर्स है आपका, जो सारे रीजनल आपके कर रहे हैं 8 के 8, तो उनके लिए वो तैयार हैं कि ये 1 से 4 आप करा लीजिए, लेकिन उसके बाकी के जितने भी आपने डेट्स रखे हुए हैं वो सारे पोस्टपोन करके इलेक्शन के बाद करना है, मीन्स 1 जून के बाद करना है। तो आपका एग्जाम भी जून के महीने में होना है, क्योंकि पिछले बार भी आपका 1 से 10 के बीच जून के बीच में एग्जाम हुए हैं सर। तो फिर एग्जाम हमारे कब होंगे, ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं, आप सुनिए, एग्जाम सपोज एग्जाम हो ही भी गया, एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम का बाद भी वर्कशॉप हो सकता है। इस बार इलेक्शन के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वर्कशॉप भी किया जा सकता है, लेकिन हमको वेट तो करना पड़ेगा, हम तो चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सारे डेट्स जो डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करते हैं? वो नवोदय विद्यालय समिति डिसाइड करते हैं डेट्स। यस सर एक्चुअली क्या है सर, आपके तरफ से एक मैसेज आ रहा है तो हम अभी आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी समिति की तरफ से भी लेटर्स आ रहे हैं, तो वो दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सर। नहीं, मैंने इसलिए तो बोला ना, मैं इसलिए बोला कि यहाँ से लेटर गया है आपका समिति को, जनरल लेटर गया है, वहीं से रिप्लाई आएगा। वो लोग अगर उसको सो मोटो चेंज कर देते हैं डेट्स, तो उसी चेंज डेट के हिसाब से हम फिर अगेन ग्रुप बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। अगर वो नहीं आता है, इसी के हिसाब से आता है, तो जो आप लोग अभी जो मैंने भेजा है, जिसका जो डिफिकल्टी है उसी अगर मेल में आप दे देंगे तो उसी के हिसाब से हम एडजस्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर 1-2 ग्रुप कम से कम अगर हो जाता है तो 1-2 ग्रुप कर देंगे, बाकी जो 2-3 ग्रुप रह गया उसको एग्जाम का बाद करेंगे, बाद में करेंगे उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट भरने का लास्ट डेट। हेलो सर, ये परीक्षा का फॉर्म कब तक भरा जाना है सर? 30 मार्च तक। अभी तो है 31 मार्च तक है, वो एक्सटेंड होता है बीच बीच में, आप देखते रहिए वेबसाइट। अगर थोड़ा सा अगर उसमें एक्सटेंड हो गया तो आप थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा। हेलो, ये जो लिखित असाइनमेंट है, इसको कुछ लोग बोल रहे थे कि एक बाई पोस्ट भेजना है, तो हम लोग वर्कशॉप जब करने आएंगे एनएलआई में तो उसी समय इसको लेके आ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, प्लीज बताइए प्रॉब्लम बताइए सर। वो असाइनमेंट जो है, कुछ लोग ग्रुप में चर्चा कर रहे थे कि बाई पोस्ट भेजना है सेंटर को, रीजनल सेंटर को, लेकिन उसको अभी सर ने जैसे बताया कि हम लोग हार्ड कॉपी वर्कशॉप के टाइम में भी लेके आ सकते हैं क्या? आप देखिए, आप तो व्हाट्सएप में तो आ रहे हैं ना, उसको बाय पोस्ट क्यों भेजेंगे? इधर उधर हो जाएगा। बिल्कुल। जब आप आ रहे हैं व्हाट्सएप में, आप बाय हैंड जमा कर दीजिए उधर। जी सर, एक क्वेश्चन है, ये
1 जून से एग्जाम है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे अदर स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से हम लोग डिफरेंट स्टेट में जॉब कर रहे हैं, तो उस समय जून में हमारी छुट्टी रहेगी, उस समय हम लोग अपने स्टेट में होंगे, तो हम सेंटर क्या अपने स्टेट का चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वापस हम इधर आके क्यों एग्जाम देना, फिर वहीं रहेंगे छुट्टी में, वहीं के वहीं एग्जाम दे ले। वही तो हम बताएं आपको, वही हम तो ये बता रहे कंफर्म है ना एग्जाम वाला जो है फर्स्ट वीक में, जून में फर्स्ट वीक में, ये तो कंफर्म है ना एग्जाम है। आप सुनिए ना, आपने तो बता क्वेश्चन तो जी जी हेलो सर। जी सर, जी सर। हेलो सर। आपने क्वेश्चन पूछा है, उस आंसर सुनना पड़ेगा। हेलो करा जा रहा हूँ सर, बात सुन लीजिए 2 मिनट। Sir, we have raised our hand. Please give us time. सर आप जो एग्जाम के बारे में बोल रहे थे ना, एग्जाम थ्रू आउट द कंट्री, किसी भी एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम दे सकते हैं। सर एक छोटी सी क्वेरी है मेरी, एक्सक्यूज मी सर। आप थोड़ा, जब मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा मुझे मौका तो दीजिए बोलने के लिए, मैं जब खत्म करूँ तब बोलिए ना। अरे सर मैं आधे घंटे से एक्सक्यूज मी कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिन्होंने ट्रेनिंग आ चुकी है उनकी डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं? आप इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं। नहीं मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ, आप मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हमारा डिस्कशन आप सुन नहीं रहे, आपको वही नहीं मैं सुन रहा हूँ। जी सर, इसके बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हैं। बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी वेट कीजिए 2-3 दिन। जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए वो चिट्ठी लिखा गया है, वहीं से अगर आता है चेंज हो करके, तो चेंज डेट आपको बताया जाएगा। वो डेट एग्जाम का बाद होगा, जून का बाद होगा या फिर पहले होगा, जो भी होगा हम आपको सूचित करेंगे, तब आप बोलिए ना। अभी हम नहीं तो सर एक्चुअली सर ये मैं जहाँ पर हूँ वहाँ नेटवर्क के लिए बाहर आना पड़ता है। मैं बाहर आया हूँ, मैं बहुत सारी चीजें मिस कर गया हूँ, तो मेरे को इसलिए पूछना चाह रहा था मैं। मेरे को नेटवर्क नहीं मिल पाता हमारे स्कूल में, तो इसके लिए हमें कोई लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी क्या? आपका ईमेल आईडी नहीं चलता है? ईमेल आईडी चलता है तो उसमें मेल भेजना पड़ेगा क्या? मेल भेजना पड़ेगा जी, थैंक यू। जो चिट्ठी में लिखा गया, आपको चिट्ठी में जो हमने दिया है उसमें क्या लिखा है? हमने लिखा है कि आपको ये आप नहीं सुन रहे हैं, मुझको बिल्कुल सुन रहे हैं आप। You are not listening to me. You do not have patience. A teacher's best quality is to listen carefully, isn't it? हम जब पढ़ाते हैं टीचर्स का पहले फास्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज लिसन पेशेंट, जो कि आपके पास नहीं है। हेलो सर। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज वी आर इन द सेम प्लेटफॉर्म। आप भी टीचर है, हम भी टीचर है, एवरीबॉडी इज द टीचर। लेकिन इसमें आपका कोई इशू नहीं है। ये इशू वर्कशॉप का इशू नवोदय विद्यालय समिति कैन ओनली सेटल। इग्नो रीजनल सेंटर कैनॉट सेटल द इशू ऑफ दिस वर्कशॉप। इसलिए हमने लेटर लिखा है, वहीं से अगर चेंज डेट आ जाता है तो उसी डेट को हम फिर ग्रुप बनाएंगे उसी डेट के हिसाब से, और आपको हम शेयर करेंगे। उसका बाद अगर डिफिकल्टी होगा तो उसको हम पोस्टपोन कर देंगे जून का बाद, ठीक है? तो सर एक आखिरी क्वेश्चन है सर। प्लीज बताइए सर, जो फॉर्म भरेंगे हम लोग, वो डायरेक्ट जो लिंक दिए मेल पर उससे भरें या डायरेक्ट जो साइड है उससे भरें? मैं कौन सा फॉर्म? ये एडमिशन फॉर्म सीपीडीटी का एडमिशन आपको एडमिशन तो हो चुके हैं, आप तो यू आर एडमिटेड स्टूडेंट। नो एग्जाम के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ मैं, सुनिए जी सर। आप इग्नो वेबसाइट में जैसे एंट्री करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप फॉर जून 2024 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ओडीएल आईओएल दोनों दिखाएगा आपको। आप उसमें क्लिक करिए। आप जैसे क्लिक करेंगे उसमें एक जगह आपको इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगा। इंस्ट्रक्शन शीट में आपको एक जगह दिखाई देगा कि अब जो है क्लिक करके ऑप्शन देगा, आप उसमें जरूर क्लिक करिएगा। उसमें क्लिक करने से क्या होगा, आपको जो सामने अभी एक प्रेजेंटेशन में दिखाया हूं आपको, मैंडेट सब्जेक्ट है इसमें, देखिए
mandatory creation of ABC ID. Mandatory creation of ABC ID by the learners before the filling of examination form to update the result on DigiLocker. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के तहत आगे जितने भी डिग्रियां स्टूडेंट्स को मिलेंगे सब डिजिलॉकर के तहत मिलेंगे और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। इसलिए आप जैसे अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको एबीसी बनाना जरूरी है और ये एबीसी क्या है? ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इट इज ए वर्चुअल एंड डिजिटल स्टोर हाउस which contains the information for all the credits earned by individual students throughout their learning journey. It will enable students to open their accounts and give multiple options for entering and leaving colleges or universities. आप इसको बनाइएगा, इसके बाद फॉर्म भरिएगा। तो ये आपको कैसे करना है वो डिजिलॉकर में आपको ले जाएगा। आप जैसे एग्जाम फॉर्म में क्लिक करते हैं, एग्जाम फॉर्म में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन शीट में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जो डिजिलॉकर कैसे डाउनलोड करना है उसको आप देख लीजिएगा। सर गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर मैंने मेरा ट्रांसफर हो गया है तो मैं सेंटर कहाँ डालूंगी सर? एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर आपका कौन सा एग्जाम सेंटर है? सर मेरा भुवनेश्वर है अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में। नहीं मतलब आपका नवोदय विद्यालय कहाँ है? नवोदय गजपति है सर। गजपति है तो आप जो है बरहमपुर में दे सकते हैं सर, लेकिन मेरा ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, शिलोंग रीजन में। तो नहीं दिखा फिर रहा मैं आपको? हाँ 2104 खलीकोट कॉलेज बरहमपुर नहीं दिखा रहा है? खलीकोट यूनिवर्सिटी। सर मेरा ट्रांसफर हो गया है तो जून तक तो हम लोग ट्रांसफर करके चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में मेरा ट्रांसफर हुआ है सर, तो मैं फॉर्म कैसे भरूँ? सुनिए, जहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है आपको ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया है? हाँ सर, रिलीविंग मतलब मिल गया। वही 31 मई के बाद हम लोग यहाँ से रिलीव हो जाएंगे। आप जिस स्टेट में ट्रांसफर हो रहे हैं उसी स्टेट का एक एग्जाम सेंटर चुन लीजिए जो आपको नजदीक रहेगा, वो आपको दिखाएगा वेबसाइट में और वहीं आप एग्जाम देंगे। सर वो भी तो कंफर्म नहीं है कि कब मतलब हम लोग रिलीव होंगे, क्या होंगे। थोड़ा इंतजार कर लीजिए जब तक पिक्चर क्लियर होता है। अभी तो मार्च 31 भी नहीं हुआ है। सर गुड इवनिंग ऐसा नहीं सर। हो सकता है कि हेलो सर, ऐसा नहीं हो सकता है सर कि अभी फॉर्म ना भरे, नेक्स्ट टाइम भर देंगे और नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा सर जब क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको सेशन में? मिनिमम वैलिडिटी मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड के अंदर कभी भी कंप्लीट करना है। बाकी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई दिक्कत है या ना है वो उसको देख लीजिएगा। हमारे तरफ से मतलब यही डेडलाइन है कि आपको जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड के अंदर आपको प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। मुझे नहीं पता अगर आपका एनवीएस की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अगर कोई है पाबंदी की आपको एक चांस में क्लियर करना है कुछ है तो आप अपने इंटरनल को देख लीजिए। लेकिन जहाँ तक लिखने का सवाल है आपको मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही प्रोग्राम को कंप्लीट करना है आपकी सुविधा के हिसाब से। लेकिन व्हाट्सएप मैंडेटरीली अटेंड कर लीजिए। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरी भी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा रही थी सर, रजिस्ट्रेशन के दौरान मेरे से बाई मिस्टेक जो है भोपाल रीजन भुवनेश्वर ना भर करके सर मेरा नोएडा भर गया था। तो सर मेरा जो मेल वगैरह आता है वो नोएडा की तरफ से आता है। तो सर मैं कैसे इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ सर? क्या तो क्या है हेलो सर। हेलो सर, हम सुन रहे हैं आपको। एक्चुअली आपका जो स्टूडेंट आप जो आज जो यहाँ प्रेजेंट हैं जी, वो अपने से प्रेजेंट है या हमसे ही मिल गया है? नहीं सर, एक्चुअली मैं इसी रीजन की हूँ, भोपाल रीजन की हूँ। तो हम लोग जो पूरा म्यूजिक का ग्रुप है सर उसमें हमारे और मित्रगण ने मेरे को ऐड कर लिया सर। तो मतलब आप हमसे ऑफिशियली में नहीं गया है? मेरा नोएडा का सर हो गया था तो इसलिए जो है तो फिर आपको जो ऑफिशियली जो आपके जो संगठन है
और इग्नू के बीच जो एमओयू है इसके तहत आपको दूसरा नोडल रीजनल सेंटर में एलोकेट किया होगा। तो सर तो आप थोड़ा उसको सर वो रीजन चेंज कैसे करके वापस भुवनेश्वर में कैसे आ सकती हूँ मैं? आप अपना रीजनल क्यों आप क्यों आपका नहीं जो जाओगे? रीजनल सेंटर है उनसे संपर्क करिए, तो उनसे संपर्क करिए, उनके ईमेल दीजिए, फिर आगे के देखा जाएगा। सर नोएडा को सर मेरा एक क्वेश्चन और है। एक्चुअली अभी हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं, एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हैं। सर मेरा ये प्रॉब्लम बताया ना सर कि मैं रजिस्ट्रेशन के दौरान बाई मिस्टेक सर मैंने नोएडा भर दिया था, भोपाल रीजन के बजाय जो है भुवनेश्वर के बजाय नोएडा में जो है उसमें क्लिक कर दिया था। तो सर अभी मेरे को जो है मैं भुवनेश्वर को कैसे जो है ज्वाइन करूं? आप पहला चीज देखिए, आप एक ईमेल दीजिए, जो आपका पहले रीजनल सेंटर जिसको आप ऑप्ट किए हैं यानी कि नोएडा जी, और कॉपी टू रीजनल सेंटर भुवनेश्वर, हम दोनों को ईमेल दीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, अब मैं भुवनेश्वर में आना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। जी नहीं, वन सेकंड। ये जो मैंने लिस्ट भेजा आप सबको, जो ग्रुप बना करके, उसी ग्रुप में आपका नाम है? जी प्राणी है, उसी ग्रुप में है आपका नाम? जी हाँ है सर। अच्छा, तो फिर आपको इस ग्रुप में नहीं है आभा मैडम का नाम, ये ग्रुप में नहीं है। ये जो वर्कशॉप की ग्रुप आई है उसमें नाम नहीं है आपका। आप वर्कशॉप वाला ग्रुप। बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए प्लीज। नीरज सिंह, हमने आपको नहीं बोला बोलने के लिए, प्लीज। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। अच्छा, वो जो ग्रुप मैंने भेजा है, वो जो 5 ग्रुप का स्टूडेंट्स, इसमें आपका नाम है? सर हाँ, आज ऐड हो गई हूँ मैं इसमें। नहीं, ऐड हो गई हूँ नहीं, जो मैंने भेजा था लिस्ट, उसी लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है? नहीं सर, मेरे पास कोई लिस्ट आई ही नहीं है ऐसी। इसका मतलब यू आर नॉट एनरोल्ड अंडर भुवनेश्वर रीजनल सेंटर। जी वही तो बोल रही हूँ कि सर मैंने मेरा बात सुन लीजिए पहले, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यू आर एनरोल्ड अंडर नोएडा रीजनल सेंटर, ठीक है जी। तो आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन को लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑल आर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, you all are not fresh candidates, isn't it? You are sponsored candidates by your organization. Therefore, you have to write to your organization that region, but due to some problem, you have been enrolled under Noida region. हिंदी में बताइए सर, हिंदी में बोलिए प्लीज। तो वो लोग उसको चेंज करके आपका नाम फिर हमारा पास अगर आ जाएगा, तब हम आपको किसी ग्रुप में चलेंगे। नहीं वो ठेला लगाता है जी सर, चाय वाला भी है ना वहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर बिमल। हेलो सर। इससे बढ़िया उसका है। You have the control. Please mute all these people. Those who have opened their mic. वही जगह। सर मेरा ट्रांसफर हो गया है। हेलो सर। देखिए हम तो है ये आखिरी क्वेश्चन एंटरटेन कर रहे हैं सर। मेरा सर प्लीज मेरी क्वेश्चन सुन मेरा लीजिए क्वेश्चन भी सुन लीजिए सर। मैं भी तो बहुत देर से 1 घंटे से हैंड राइज करके हूँ सर। मेरा भी एक सवाल है। आप आपस में बोल दीजिए और सुन लीजिए। एक साथ बोले तो हम किसको सुनेंगे? आप लोग पहले अपना हैंड्स जो है डाउन कर दीजिए, उसका बाद हम एक एक करके पूछेंगे। जो हैंड एक एक करके रेज करेंगे, एक एक करके पूछेंगे, उसका बाद सर मेरा ट्रांसफर हो गया सर, लेकिन लोग जितने भी हैंड्स रेज किए हैं, प्लीज डाउन योर हैंड्स फास्ट। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, सो दैट वी विल लिसन टू ईच वन ऑफ यू। पहले हैंड्स डाउन कर जो हैंड्स पहले तो अपना नाम बताइए, सवाल पूछने से पहले अपना नाम बताइए और रीजनल सेंटर का नाम बताइए, फिर आगे बढ़िए। और एक पर्सन जब पूछ रहा है तो दूसरे काइंडली म्यूट करिए। हेलो सर। बोलने नहीं देंगे सर। नाम बताइए। हाँ सर, जितेंद्र कुमार भावरकर सर। सब सारे हैंड्स रेज किया हुआ है, एक एक करके। हेलो सर। विपिन पाचौरी आप बोलिए। विपिन पाचौरी। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जितेंद्र कुमार भावरकर। विपिन पाचौरी का नाम लिया मैंने सर। विपिन पाचौरी जी। फिर विपिन के बाद है पूनम सिंह बोलिए। पूनम सिंह, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
मुजीब अंसारी, बोलिए। मुजीब अंसारी, ठीक है। नीरज सिंह, नीरज सिंह जी कुछ नहीं कहना है। इसके बाद गिरिजेश राय, हाँ सर, बोलिए। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का मेरा सीपीडीटी वर्कशॉप का डेट आया था सर, उसको चेंज करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट रिवर्ट मेल पे डाल दिया है। तो मुझे मेरे पार्ट पे कुछ और करना है क्या सर? आपको कुछ नहीं करना है अभी, जो करना है हमको करना है। प्लीज वेट फॉर सम, वेट फॉर द नेक्स्ट कम्युनिकेशन। हम आपको थैंक यू। ठीक है, अभी मंदाकिनी मिश्रा पूछिए। मंदाकिनी मिश्रा, ठीक है। नहीं है आप? सुरभि जैन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? आपको असाइनमेंट आपने व्हाट्सएप के दौरान सबमिट करना है एनएलआई पूरी में, एनएलआई भुवनेश्वर कोणार्क में। आप जब व्हाट्सएप करेंगे ना अपने इंस्टीट्यूट में, वहीं पे जमा करेंगे असाइनमेंट। सर कब तक सबमिट करना है? तब तक सबमिट करना है जब तक आपका व्हाट्सएप चलेगा। आप तो 5 दिन के लिए व्हाट्सएप में आएंगे ना, 3-4 दिन के लिए, उसी के दौरान ही आपको सबमिट करना है, वहीं पे सबमिट करना है और उसी दौरान सबमिट करना है। थैंक यू सर। पढ़े भी है सुबह। अभी जो है म्यूजिक फीस्ट वही तो मैं जान नहीं पाया ना, आज हल्ला गुल्ला हो गया वहाँ। कुसुम सिंह बोलिए। कुसुम सिंह कुछ कहना चाहते हैं? पूरी ने सुबह वो टोंटबाजी कर दी। सर ये मैं जो अभी ट्रांसफर का ये बोल रही थी है सर, 2-2 घंटे काम करके भग जाते हैं। कुसुम सिंह का हो गया है। हो गया। हेलो सर। नारायण चटर्जी, हेलो सर। हेलो सर, नारायण जी बोलिए। कुसुम सिंह बोल रही हूँ सर। सर वही मैं बोल रही हूँ ट्रांसफर आपका हो गया है। आपका क्वेश्चन हो गया, प्लीज आप हाथ नीचे कर दीजिए। हेलो सर। देखिए मेरा सीरियल से अगर कोई बाहर बोलेगा तो मैं सुनूंगा नहीं। शिवनारायण जी को सुन रहा हूँ अभी मैं। हेलो सर। कहिए। प्लीज सर, टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जाम इज 1 जून, 4 जून एंड 6 जून। वो जो है आप वो शेड्यूल देख लीजिए वेबसाइट में। Sir, listen to me. The tentative dates which have been given as 1st June, 4th June, 6th June, and 4th June, the final counting is there. So we will be missing one paper. Then you see, if that will be the case, then university will university might change the date. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. हम नहीं कह सकते because this is the date. This is the tentative date given by the university. If there will be vote counting and because of that counting many people will be missing, then definitely university will do something on that. So Okay, sir. Thank you. ठीक है। अनिरुद्ध तोमर। सर मेरा भी क्वेश्चन सुन लीजिए सर। नहीं मैं अनिरुद्ध का नाम लिया। सर मेरा भी तो नाम लिए थे, मैं बोल रही थी 2-3 लोग और आपका क्वेश्चन तो हमने सुन लिया था ना, आपको तो एडवाइस कर चुका है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि मान लीजिए ट्रांसफर हो गया, मेरा डेट क्लियर नहीं है कि कब मतलब वहाँ पे जाएंगे सर, तो वर्कशॉप का मैं क्या एनएलआई पूरी में करके जाऊंगी या फिर वहाँ मतलब एग्जाम का डेट आपका देखिए, यू आर एनरोल्ड अंडर भुवनेश्वर रीजनल सेंटर, ठीक है। आपका ट्रांसफर तो हो गया, बात अलग है। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ भुवनेश्वर रीजनल सेंटर. So Bhubaneswar Regional Center will conduct the workshop at NLI Puri. So you have to obviously have to attend the workshop at NLI Puri only. जी सर। तो सर इस बार फॉर्म नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नेक्स्ट टाइम भर देंगे एग्जाम। एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं देना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, नेक्स्ट में भरिए, फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना है। लेकिन वर्कशॉप जो है ना वो बार बार होता नहीं है, क्योंकि उसमें वो टाइट हो जाता है ना स्टूडेंट्स, इसलिए वर्कशॉप में आप अकोमोडेट करने का मुश्किल है। लेकिन थ्योरी पेपर आप दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अभी जो है गणेश सैनी, ठीक है, गणेश सैनी नहीं है। जितेंद्र कुमार भावरकर। गुड इवनिंग सर।
हाँ, गुड इवनिंग, सर बोलिए। मेरा सवाल ये था सर कि एक्चुअली मुझे ऑलरेडी माइक्रो ऑब्जर्वर का जो ड्यूटी का 13 मई को हमारे यहाँ खंडवा में चुनाव है सर। तो 13 मई का ऑलरेडी हमको लेटर अभी मिल चुका है, तो वो तो हमें करना है, और मेरा जो है उसी वाले वर्कशॉप में 11वें नंबर पे मेरा नाम है सर। तो मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ सर कि उसको यदि हो सकने से जरूर कंसीडर कर दीजिए, अदरवाइज वो सेम इलेक्शन टाइम में आना नहीं हो पाएगा सर। यही मैं करना चाह रहा हूँ। आपको तो यही हम बोल रहे हैं ना, आपका मेल हमको मिल चुका है। मुझे याद है आपने मेल भेजा है मुझे। जी जी जी, मेल किया है सर, मैंने आज ही भेजा है आपको मेल किया है। मेल मैंने पढ़ा भी हूँ, उसको मैंने सेव करके रखा हूँ। प्लीज उसका प्लीज ऊपर सर, हम काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और एक सर छोटा सा सवाल ये था कि एक्चुअली जो ये एग्जाम का जो फॉर्म है सर, पहले जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हिंदी मीडियम में लिख दिया है, तो एग्जाम क्या हिंदी मीडियम में ही लिखना होगा या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, तीनों थ्योरी पेपर। दोनों आप जिसमें चाहेंगे उसमें दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते ओके हैं। ओके सर, जी जी वो जी आपका सर, मर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। बस और कोई सवाल नहीं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो सवाल पहले एड्रेस किया जा चुका है उसको ना पूछें, क्योंकि ये खाली रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन और रिपीटेशन ऑफ आंसर है। तो जो लोग भी इलेक्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं व्हाट्सएप में, इस प्रकार का मुद्दा है, जिनको सीनियर इलेक्टर साहब जो है उसको 3-4 बार क्लियर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि फिर आप लोगों से कोई दोबारा ये सवाल को रिपीट नहीं करेगा। जैसे साहब ने पहले ही बताया है, आप लोग जो ईमेल दिए हैं उस ईमेल के तहत हमारे जितने कंस्ट्रेंट्स है उसी के तहत जितना भी रिग्रुपिंग किया जा सकता है नवोदय विद्यालय संगठन के सुविधा और इग्नो की सुविधा के तहत, हम उसी के तहत रिग्रुपिंग जितना कर सकते हैं हम करेंगे। काइंडली उसको रिपीट मत करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ईमेल। दूसरा चीज, अभी मिलिंद अग्निहोत्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जिसका असाइनमेंट बन चुका है तो कॉपी दोबारा बनानी पड़ेगी कि A4 साइज पे चल जाएगा? अगर बन चुका है तो उसको अच्छे से सिलाई करके दीजिए, जैसे खुलेगा नहीं। हाँ सर, सिलाई कर दूंगा मैं सर। उसको ठीक से स्टेपल कर दीजिए आराम सर से। सर सर आपसे अगर कांटेक्ट करना है तो एक बार मेल और मेरे को नोटिफिकेशन कर दीजिए, तो मैं कभी भी कोई क्वेरीज होंगी तो पूछ सकता हूँ। आप ईमेल करिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। आप जो है असीमा दास नायक, असीमा दास नायक। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चन करना है। जैसे कि मेरा गोवा एनएलआई में लेटर आ चुका है कि गोवा एनएलआई में मेरा ट्रेनिंग होना है जी, और लेकिन मेरे मेल पे आपके इसमें मेरा नाम है 5 ग्रुप जो है ग्रुप 5 उसमें मेरा नाम है, और उसके तहत मेरा जो वर्कशॉप आ रहा है वो 13 मई से आ रहा है। तो लेकिन एनालाइज गोवा से भी मेरा आ गया। अभी जैसे कंफ्यूजन कब से है? वहां दिया हुआ है सर 29 अप्रैल से 3 मई तक। तो आप एक काम करिए, एक ईमेल डाल दीजिए हमको, आरसी भुवनेश्वर को। आरसी भुवनेश्वर को ईमेल डाल दीजिए, हम गोवा के साथ बात करके उसको जो भी है कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, लेकिन सर मुझे भुवनेश्वर में ही करना है। मैंने भरा भी था एनएलआई भुवनेश्वर, क्योंकि मेरे घर के नजदीक होता है वो ईमेल में आप वो चीज भी लिख दीजिए। ओके ओके सर, ओके ठीक है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। ये एग्जाम का फॉर्म भरते समय जो एबीसी आईडी को हमने नो कर दिया था, तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर गए थे, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? नहीं, कुछ नहीं। उसमें क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये जो आगे जितने भी डिग्रियां दिए जाएंगे सारे जो है डिजी लॉकर में रहेंगे। इसीलिए आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एनरोल करने के लिए कहा गया है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वेबसाइट में, इसके तहत पहले आपको करना है। लेकिन क्या आपका एग्जाम फॉर्म सबमिशन हो गया है? जी सर। हो गया तो फिर तो अभी तो होगा नहीं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। नो करके हम आगे बढ़ गए थे सर, नो करके आगे बढ़ गए थे, तो हो गया, कंफर्म हो गया, सबमिशन हो गया ना। आपको टोकन नंबर जनरेट हो गया? जी सर। टोकन नंबर का आप संभाल के रखिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। माधुरी साहू।
ठीक है माधुरी सर का कोई क्वेरी नहीं है। अभी हम मूव करते हैं गौरी शंकर सिंह। गौरी शंकर जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला, चैट बॉक्स में सर लिंक दे दीजिए। स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला सर। देखिए इसमें दो तरीका है। एक तो है कि आप ई ज्ञान कोर्स करके है, आप गूगल में जाइए और अपना कोर्स कोड डालिए। जैसे कि आपका कोर्स नहीं खोज पा रहे सर, उसमें नहीं खोज पा रहे। चैट बॉक्स में सर लिंक दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आप मैं कह रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए पहले। क्या सीपीडीटी आपको ई ज्ञान कोर्स में नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा पा रहा है सर। नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है तो आप एक ईमेल दीजिए। मेल भेजा हुआ है सर, मेल भेजा हुआ है। किनको दिए हैं? आरसी भुवनेश्वर को भी दिया, RC2 भुवनेश्वर को भी दिया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। 3-4 दिन हो गया। एक्चुअली बुक्स जो है दिल्ली से आते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सर सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं, कम से कम सॉफ्ट कॉपी अभी मिल जाएगा तो पढ़ लूंगा। ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी हम कोशिश करते हैं, अगर मिलेगा तो उसको भी डाल देंगे ईमेल में। हाँ नहीं डाला हुआ है, लेकिन एसएस राइट उसमें मांग रहा है। तो राइट बोल रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब है कि सीपीडीटी जो है सॉफ्टवेयर वो वेबसाइट में अवेलेबल है। आप एक काम करिए, उसमें देखिए कोई प्रेजेंट भी कर रहे हैं मेरे कलीग, उसमें आप सीपीडीटी का भी आप गूगल में भी जाएंगे, गूगल में जाके आप लिख दीजिए PES 061 इग्नो ई ज्ञान कोर्स, तब भी आपको मिल जाएगा। PES 061 लिख देंगे, इसके बाद इग्नो टाइप कर देंगे, इसके बाद ई ज्ञान कोर्स लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तब भी इट विल टेक यू टू द कंसर्न पेज, जहां से आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। आप कुछ ना करके गूगल में भी जाएंगे तभी मिल जाएगा। नहीं डॉक्टर नंदा, गूगल से तो नहीं मिल रहा था सर। गूगल से Nanda, I think this material may not be available because of the fact that it is specially prepared for Navodaya Vidyalaya teachers, and therefore they have not uploaded. CPDT materials are not uploaded. हो सकता है सर, एक बार हम देख लेंगे। We will send you. I have the complete, the zip file I have, so we will share the study materials with all the students. हाँ नहीं सर, जिप फाइल तो मिला है मेल में, लेकिन जिप फाइल तो 22 KB का दिखा रहा है, तो उसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। नहीं उतने स्टडी मटेरियल तो होगा ना, आपका 3 पेपर प्लस 1 जो 64 जिप है। फाइल में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा सर, ब्लैंक दिखा रहा, क्योंकि 22 KB फाइल है, फाइल का साइज 22 KB है, इसलिए उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा। और पहले एक मेल मिला था उसमें, लेकिन उसमें गूगल ड्राइव का एक्सेस राइट मांगता है। नहीं हम आपका सेपरेटली आपको भेज देंगे, सेपरेटली ईमेल आईडी में भेजेंगे, उसको फाइल सेग्रीगेट करके भेज देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी सुरेंद्र शैलेश ज्योतिषी सुरेंद्र पाटस्कर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ हेलो सर, हेलो SK ज्योतिषी बोल रहा हूँ सर। शैलेश बोल रहा हूँ। सर ये पूछ रहा था कि जो जैसे कोर्स का 5 दिन का ड्यूरेशन है, तो हमको रिपोर्टिंग क्या 1 डे पहले करना है? एंड क्या वहां जाते समय कोई फैमिली मेंबर साथ में जा सकते हैं क्या? नहीं, वो सुनिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ एकोमोडेशन उनका मैक्सिमम 45 पीपल कैन बी एकोमोडेटेड। तो अगर आप फैमिली मेंबर लेके जाएंगे तो वहाँ डिफिकल्टी होगा रहने के लिए, क्योंकि सर आप NLI पोरी में बात कर लीजिए। हाँ, पहले वहाँ जो कोऑर्डिनेटर है संध्या मैडम से बात कर लीजिए। इफ दे कैन एकोमोडेट वी हैव नो प्रॉब्लम। ओके सर, 1 डे बिफोर रिपोर्ट करना होता है? वो आपका मर्जी है, क्योंकि जब वर्कशॉप शुरू होगा वो सुबह भी बहुत लोग पहुंच जाते हैं। सुबह भी पहुंचने से भी by 10 o'clock they are in the conference hall and they attend the workshop. So वो आपका थैंक यू सर। सुरेंद्र पाटस्कर जी हेलो सर जी, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं एक सेंटर चूज करना चाह रहा था जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है 1507 सागर MP।
बट वो उसमें शो नहीं कर रहा है, तो सर वो क्योंकि वो 150 आपका सवाल का जवाब मैंने चैट बॉक्स में तभी लिख दिया था, फिर भी बोल दे रहा हूँ। जी। ये है आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, भोपाल है या जबलपुर? नहीं, मैं भुवनेश्वर ही में सर मैंने किया, लेकिन उस टाइम मेरा वैकेशन रहेगा तो मैं घर पे रहूंगा। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सागर ही है, मैं घर पे ही रहूंगा उस टाइम। तो मेरे वो देखिए एक्चुअली हर रीजनल सेंटर का एग्जामिनेशन सेंटर जो है फिक्स्ड है और वो तय करता है जो रीजनल सेंटर है। अगर आपको 15 से 7 अवेलेबल नहीं है तो आप देख लीजिए कि नजदीक में क्या है। जी सर, जी, ओके। ठीक है, नजदीक में जो है उसको आप कर लीजिए। जी सर, ठीक सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। मनोज कुमार जोशी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये हमारा क्या हुआ कि सर जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम सेंटर का जब सर उस समय आया तो क्या है कि रीजनल सेंटर जो अपना भुवनेश्वर होने के कारण हमने सर भुवनेश्वर डाल दिया था जी। तो उसमें क्या है कि जो उज्जैन जो होना था सर, उज्जैन हमारा उज्जैन है दरअसल, तो वो सर आप पे नहीं हो पाया। तो मैंने बात भी किया था सर वहाँ पे अपने इग्नो का जो ये है हेल्प सेंटर पे, तो क्या कहा उन्होंने कहा कि सर आप जब वर्कशॉप के लिए जाएंगे तब हम बात कर लीजिएगा बोले। ऐसा है मनोज जी, जब हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसमें एक क्लज रहता है कि, और हम उसको टिक करते हैं कि एक बार हम जब एग्जाम फॉर्म में एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट कर देते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। लेकिन अगर इस प्रकार का सिचुएशन है तो दिक्कत है, तो आप जो जहाँ पे एग्जाम देंगे अगर उस टाइम में एसीडी का कोई प्रावधान रहेगा, रीजनल सेंटर को फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगा तो अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, मतलब ये आपको सर्कमस्टेंसेस दिया है तो उस टाइम में आप अपना कंसर्न रीजनल सेंटर को जहाँ पे एग्जाम देंगे उस रीजनल सेंटर को कंडक्ट कर लीजिए। अगर उनको आपको फैसिलिटी है आपको पंचायत लाने के लिए तो आपको अलाउ कर देगा, और प्रॉब्लम है तो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे सर क्या रीजनल सेंटर भोपाल करना पड़ेगा क्या? जी, अगर आपका एग्जाम सेंटर भोपाल का अंडर में आता है तो उन्हीं को कंडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम उज्जैन में आता है और सर, गारंटी नहीं है, जी हो सकता है, हो नहीं भी सकता है। ठीक है, अच्छा, मतलब आप लोग नहीं सर उधर कर पाएंगे जैसे वर्कशॉप में आते हैं कोई मेल आपको आपको मेरा बात थोड़ा सुन लीजिए, मेरा बात नहीं होगा, मेरा बात थोड़ा सुन लीजिए। इसका उद्देश्य यही है कि हमको नहीं पता, देखिए आप वहां एग्जाम देना चाहेंगे, उनका पास क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी है कि नहीं, हमको नहीं पता। वो ऑन द स्पॉट वो उनका रीजनल डायरेक्टर को पता होगा। तो इसीलिए नॉर्मली चेंज ऑफ सेंटर इज नॉट अलाउड, लेकिन मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो बहुत वो कर सकते हैं वो, लेकिन ये सारी चीज देखना पड़ेगा, क्वेश्चन है कि नहीं, वो जिस सेंटर में आप चाह रहे हैं वो सेंटर में सारे फैसिलिटीज है कि नहीं, वो सारे देख करके आपको अलाउ करेंगे। तो आप उसी रीजनल डायरेक्टर को मीट कर लीजिए एक बार, नहीं तो फोन से कांटेक्ट कर लीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर वो कर देते हैं तो बस आपका हो गया काम। श्रीधर यादव जी, श्रीधर यादव, थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग सर। कहिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था, मैं एक्चुअली सर एमपी के विद्यालय में हूँ, तो यदि मैं खंडवा सेंटर डालना चाहे तो मुझे वो स्टडी सेंटर वाला कौन सा चॉइस करना पड़ेगा एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय सर? देखिए, स्टडी सेंटर के साथ एग्जाम सेंटर का कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ सर। अगर आप मिजोरम में आपका स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, लेकिन आप उस टाइम में आपको लगता है कि आप जो है नागालैंड में, तो नागालैंड का कोई भी एग्जाम सेंटर आप ऑप्ट कर लीजिए। एक बार इसको आप ऑप्ट कर लेते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। तो स्टडी सेंटर अनिवार्य रूप से एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जो सर, आप ऑप्ट करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम में वही फाइनल है। अच्छा सर, मैं अभी फिलअप नहीं किया फॉर्म, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा। मैं चाहता हूँ खंडवा सेंटर मिले। आप नजदीक सेंटर चुन लीजिए। हाँ सर। सर नेक्स्ट है कुमुद शाह जी। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट ग्रुप में ही नाम आया है जो कि 1 तारीख से होना है, 1 अप्रैल से।
जी। तो वो निश्चित है ना, हम लोगों ने प्लेन का टिकट वगैरह सब कर लिए हैं। ओ गॉड तो आपको थोड़ा वेट करने के लिए हमने बोला था। सर क्या है कि ट्रेन में तो अवेलेबल ही नहीं है, फिर इतनी दूर कैसे जाएंगे? आप देखिए, क्योंकि जैसे फास्ट ग्रुप तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर एनएलआई लिख के देता है नवोदय विद्यालय समिति, उसको चेंज करने के लिए तो हम तो उसको कुछ अवॉइड नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए मैंने बोला था कि 2-3 दिन वेट कीजिए, वो जो अच्छा लेटर अच्छा। गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आप तो कर ही दिया है, और क्या है, अभी वेट कीजिए। नहीं, हम फर्स्ट ग्रुप में अपना नाम देखे तो फिर कर लिए टिकट, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। सुनील कुमार सुमन, सुनील कुमार। नहीं है सुनील कुमार सुमन जी, ठीक है। अभिनंदन बोलिए, अभिनंदन जी। ठीक है, अभी हम सेशन कंक्लूड करते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा फिर से आप सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सर नहीं, मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है सर। अभिनंदन पहले बोलिए, अभिनंदन बोलिए। हम अभिनंदन के बाद क्लोज करेंगे। मोना सिंह को हम नहीं बुलाए हैं, अभिनंदन के बाद मोना सिंह, इसके बाद क्लोज करेंगे। Sir, hello. Study material अभी तक नहीं मिला है sir. We have not received the study material till now. Hello. We will send you once again. Please wait. We are sending the study material once again to all the students. सर एक ही डाउट पूछना है। हेलो, आप एक बात सुन लीजिए, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी तो दिल्ली से आएगा, प्रिंटेड कॉपी। अभी सॉफ्ट कॉपी जो मेरे पास है, वो सॉफ्ट कॉपी हम सबका ईमेल आईडी में दोबारा हम भेज देंगे, ठीक है? अगर आपका ईमेल आईडी सही है तो डेफिनेटली यू विल गेट इट इन योर ईमेल आईडी। मोना सिंह पूछ लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मोना सिंह। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मोना सिंह बोल रही हूँ। बोलिए। सर मेरी क्वेरी थी कि जिसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और अगर वो एनएलआई में वर्कशॉप में नहीं आ पाएगा, तो सर वो असाइनमेंट कैसे भेज सकते हैं? सर कुछ मेडिकल इश्यू, बाय पोस्ट तो आप बाय पोस्ट भेज बिकॉज दीजिए। सम मेडिकल इश्यू। आर भुवनेश्वर बाय पोस्ट भेजिए, कोई प्रॉब्लम। ये से रीजनल सेंटर को हम जहाँ बैठे हुए हैं इधर भेज दीजिए। आप एनवेलप के ऊपर, और एक एनवेलप के ऊपर लिख दीजिए सीपीडीटी प्रोग्राम, असाइनमेंट सीपीडीटी प्रोग्राम करके एनवेलप के ऊपर कैपिटल लेटर में लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। और सर दूसरी क्वेरी है कि हमारा ट्रांसफर पटना रीजन हो गया है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये सीपीडीटी का वर्कशॉप करना होगा तो क्या मुझे पटना एनएलआई का जो पटना जो एनएलआई है उसमें जाना होगा या फिर भुवनेश्वर ही आना होगा? उसके लिए इनके सर मैं नहीं कर पाती हूँ। यस सर, यस झारखंड हो गया है ट्रांसफर। 31 मई के बाद हमें रिलीज यहाँ से किया जाएगा। तो आपको देखिए उनका ऊपर है, क्योंकि हमको नहीं पता उनका कैपेसिटी कितना है, वो लोग एकोमोडेट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको उनसे बात करना पड़ेगा पहले, आपको उनसे बात करना पड़ेगा। अगर पटना allows you to attend the workshop, then यहाँ से हम नो ऑब्जेक्शन देंगे, देन आप वहाँ वर्कशॉप अटेंड कर पाएंगे। नहीं क्योंकि ये आपका एनएलआई जो है तो उनका लिमिटेड कैपेसिटी होता है। यस सर, यस सर। तो इसलिए वो लोग पॉसिबल नहीं हो रहा है कन्वर्ट करना, बट फिर भी आप बात कर लीजिए, अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो हम एनओसी दे देंगे। ओके ठीक है। सुनील कुमार सुमन को और अभी के लिए मैं फर्स्ट लिस्ट के लिए मैं अपना नाम आरसी भुवनेश्वर को ईमेल करूंगी। अगर फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए तो आई विल कि मैं अभी ही करूं। नहीं हो पाता है सर तो मैं फिर फर्दर देखूंगी। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सुनील कुमार। हेलो सर, अभिनंदन आपको सुनते हैं। सर अभिनंदन। सुनील कुमार बारी, सुनील कुमार सुमन, सुनील कुमार सुमन मुझे नहीं सुना सर, मैंने नहीं बोला है।
सर आपने मुझे नहीं सुना है अभिनंदन। ठीक है, सुनील कुमार के बाद आइए। हेलो अभिनंदन, सुनील कुमार को मैं बुला लेता हूं, उनके बाद आइए। सर स्टडी मटेरियल के बारे में ऑलरेडी सर क्लैरिफाई कर चुके हैं, थैंक यू सर। ठीक है सर। लेकिन मिल जाएगा तो अच्छा है सर, थोड़ा सा ये आंखों के लिए थोड़ा अच्छा है सर, थोड़ा वो कंप्यूटर वाला प्रॉब्लम हो जा रहा है सर, अगर जल्द से जल्द। सही कह रहे हैं, वो दिल्ली से आएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और सर यस सर। ठीक है, अभिनंदन कहिए। अभिनंदन। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैं पूछ रहा हूँ सर, मीटिंग में मैं नहीं था, मैं पूछ ले रहा हूँ एक बार। असाइनमेंट सर वहाँ एनालाइज ले आना है। यस, असाइनमेंट का जो रेस्पॉन्सेस हो एनालाइज लेकर आना है और व्हाट्सएप के दौरान वहीं पे ही जमा करना है। सर एग्जाम फीस 600। वो एग्जाम फी आप एग्जाम फी सर, एग्जाम फी कितना लग रहा है? एग्जाम फीस जो है आप ऑनलाइन में जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपका जो मित्र है वो कह रहे हैं कि पहले 4 कोर्स दिखाता था, अभी 3 कोर्स दिखा रहा है। तो जितना कोर्स दिखा रहा है उतने आप कर लीजिए, वो आपको दिखा देगा वेबसाइट में। हाँ 600 दिखा रहा है सर। पर पेपर 200 पर पेपर 200 सर, यानी कि 600 देना है। वो आपको वेबसाइट में ही दिखा देगा, आपको वो दिखाएगा उसमें। ठीक, एक चीज और है सर, मेरा आरसी भुवनेश्वर है सर, रीजनल सेंटर भुवनेश्वर है, लेकिन एग्जाम के समय मैं झारखंड में रहूंगा, तो क्या मैं सेंटर रांची दे सकता हूँ? सेंटर एग्जाम सेंटर रांची दे सकता हूँ? आपका जो एग्जाम सेंटर है आप उसी को ऑप्ट करेंगे, बशर्ते कि आपका जो है डिस्पाइट कि आपका रीजनल सेंटर भुवनेश्वर है, आप कहीं पे भी एग्जाम सेंटर दे सकते हैं। रीजनल एग्जाम सेंटर रांची दे सकते हैं सर? कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो है आज झारखंड में 2 रीजनल सेंटर है, एक देवघर में है और दूसरा जो है रांची में है। आपका एग्जाम सेंटर जहां पे भी आता है आप उसी को ऑप्ट कर लीजिएगा। और रीजनल सेंटर भुवनेश्वर रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप के लिए आपको एनएलआई कोणार्क में आना ही है। मैं सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं कि आप कहीं पे भी इंडिया में दे सकते हैं, एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं सर। एग्जाम फॉर्म में अप्लाई किए हो, आप एग्जाम फॉर्म में वही एग्जाम सेंटर ऑप्ट किए हो तभी। ठीक है सर, ठीक है, यानी कि रीजनल सेंटर भुवनेश्वर, एग्जाम सेंटर रांची हो जाएगा ना? नहीं समझा मैं। रीजनल हो जाएगा। सुनिए, आपने बार इतना कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों को? देखिए, इग्नो का सिस्टम ऐसा है कि आप किसी भी रीजनल सेंटर का स्टूडेंट हो, लेकिन एग्जाम आप सारा भारत में किसी भी एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू एग्जामिनेशन का जब फॉर्म फिलअप करते हैं, जहां एग्जाम देंगे उसी सेंटर को आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भुवनेश्वर का स्टूडेंट होने से भी अगर एग्जाम